Hi friends, welcome on panel discussion of ONGC इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग। ONGC ने अपना एग्ज़ाम लिया था इस बार पहली बार और बहुत से कैंडिडेट्स को फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशनल बैकग्राउंड एक इंटरव्यू का शॉर्टलिस्टिंग आया है। Interviews are from 9th of April 2025. Today is 29th March. Yesterday shortlisting came, 28th March 2025 shortlisting came. And professional background, like if I talk about mechanical engineering, there is a professional requirement of mechanical engineers in drilling, in production and generic mechanical. Similarly petroleum में है और chemical में है, petroleum में भी production है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, जियोफिजिस्ट हैं. सो दीज आर द प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स फ्रेंड्स, एंड देर आर नंबर ऑफ सीट्स इन ईच ऑफ दीज एंड इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग इज देयर. नाउ at the time of advertisement or ONGC, they mentioned clearly that group discussion can be part of your overall selection process. Whether there will be GD or not, we don't know, but you should prepare it, because if on 9th April when you land up there and you realize that GD is being conducted और आपने तैयारी नहीं किया है, then it can be trouble. So I'll discuss that with Shikha ma'am also. One more thing very important is, now why this interview of ONGC is very important, because there is a cutoff you need to clear in the interview. Friends, you need to clear, if you're general category, you need to score 60% in the interview. Out of 100 marks, let us say some marks are kept for interview. I believe it is 30% or something. So 15 नंबर में से आपको अगर 60% स्कोर करना है तो 9 मार्क्स हैं. इफ़ यू स्कोर इवन 1 मार्क लेस देन कट ऑफ इन इंटरव्यू, तो आपके रिटर्न में चाहे आप रैंक 1 हैं, CBT में आप रैंक 1 हैं, आप फाइनली आगे नहीं जाएंगे, बिकॉज आप बाहर हो जाते हैं. तो एलिमिनेटिंग है इंटरव्यू, एंड बिकॉज इट इज एलिमिनेटिंग, सो द preparation to be done, the pressure of preparation for interview will be equally high on the rank 1 and the last rank. तो आपका रिटर्न जैसा भी हुआ हो, now keep it aside and prepare really well for the interview. And interview में there are 3 components. There's a HR component, there's a technical component, and there's a group discussion component. Today with me, Shikha ma'am will be talking about the group discussion part. Shruti ma'am, I'll be discussing the HR part, and technical we will have another panel discussion with the mentors of electrical, mentors from another branches, mechanical and all. So we'll have discussion on that. So Shikha, over to you. Group discussion, confusion among students, होगा नहीं होगा, and students think out of these two, अगर एक assume करना है तो assume कर लो, नहीं होगा, मेरा काम कम हो जाएगा. So let's go to the interview without GD preparation. Okay. So yes sir, group discussion is also very important part these days in a lot of organization for your mode of selection. So ONGC में जैसे उन्होंने लिखा हुआ, आपने अभी बताया कि एडवर्टीजमेंट में है, बट आई थिंक इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर फॉर दैट. ठीक है, फॉर योर जनरल नॉलेज एज वेल. ठीक है, टू अपडेट योर सेल्फ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. ठीक है, एंड इफ यू आर गोइंग इन द इंटरव्यू, मैं उसको लिंक करती हूँ. आजकल करंट क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं. अगर आप किसी भी स्टेट से, किसी सिटी से बिलोंग करते हैं, हाँ, केस स्टडीज ऑल्सो. केस स्टडीज तो है ही है, उसके साथ उसको अलाइन किया जाता है. अच्छा, आप MP से हैं तो अभी क्या चल रहा है वहाँ पे, आप बताइए. आप साउथ से हैं तो अभी कौन सा वो सेंटर स्टेट डिवाइड वाला चल रहा है, डेलिमिनेशन चल रहा है बेसिकली, आपको अवेयर है. तो बच्चे उसके लिए बारे में अवेयर नहीं होते. सो आई वुड एडवाइज कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए GD के लिए, एंड मोस्ट करंट टॉपिक प्रिपेयर कीजिए. करंट टॉपिक का सिंपल मतलब है जो आपको करंट में भी चल रहा है, उससे बहुत सारे टॉपिक्स आ सकते हैं, राइट. जैसे कि अभी प्रेसिडेंट रूल है मणिपुर में, जैसे उसके बारे में चल रहा है बेसिकली. और हो सकता है इंडियन, आई थिंक इंडिया चैलेंज डीप ओशन, लाइक ओशियानिक, उसमें जो मैसा 6000 जो समरसील है बेसिकली, उससे रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक आ सकते हैं. बहुत सारे और टॉपिक आ सकते हैं. तो आई वुड से कि आपको GD के लिए प्रिपेयर करना चाहिए. एटलीस्ट अगर आप 2-3 GD अटेंड करते हैं तो आप इतना हो सकते हैं कि आप उसको पास कर लें एटलीस्ट. दैट वुड बी द बेटर, आई गेस. एंड आई बिलीव एवरी वीक वी आर रिकॉर्डिंग GD सेशंस, और हम डॉक्यूमेंट्स भी देते हैं. तो सर रिकॉर्डिंग्स आर देयर, मतलब एवरी डे एक करंट GD टॉपिक रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक है, आप उसको डेडिकेटली कैंपस प्रेजेंट चैनल पे भी देख सकते हैं, GD पर भी मिल जाएगा. नंबर सेकंड, जो भी लाइक हम रेगुलर सेशन कंडक्ट करते हैं, उनके आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड होते हैं पैनल पर, एंड इवन योर व्हाट्सएप डेडिकेटेड जो आपके ग्रुप्स हैं उसमें भी सब उसके अकॉर्डिंग. अगर आप अटेंड नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप डॉक्यूमेंट्स पढ़िए, थोड़ा सा उनको चेकआउट कीजिए कि क्या आप स्केलेटन उसमें बोल सकते हैं.
सो आई वुड से दैट वुड बी द मोर बेटर. बट अगर आप ये सोच के जाते हैं कि इंटरव्यू है वो बहुत ईजी से क्वेश्चन पूछेंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं है. क्योंकि आजकल और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें ऐसा हो रहा है कि इवन आप जीडी के लिए प्रिपेयर करके जाते हैं फिर भी वो एकदम से चेंज कर देते हैं सिनेरियो, एंड वो एक ट्रबलसम हो जाता है कि आपने तो प्रिपेयर ही नहीं किया इस तरीके से. आई थिंक सो यू नीड टू बी प्रिपेयर इट आउट. So GD, what I think candidates think GD is all about a lot of knowledge and very good communication skill. Let me tell you friends, ONGC is a public sector and you can communicate in Hindi also. Yes. अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, आप GD भी हिंदी में दो, आप इंटरव्यू भी हिंदी में दो, इंट्रोडक्शन It's advantage also. एडवांटेज होता है. और नंबर 2, GD नॉलेज बेस्ड पे नहीं होता, GD प्रैक्टिस बेस्ड है. आप 5 से 10 प्रैक्टिस अगर करेंगे मेंटर्स के साथ तो आप उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जिसमें एलिमिनेट नहीं होंगे आप और आप उसमें पास हो जाएंगे. तो GD की प्रिपरेशन जरूर कर लेना. ओवर टू यू श्रुति मैम अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ HR. Sir, whenever applicant come to us, we always guide them कि introduction हमेशा long नहीं होना चाहिए. It should be almost between 1 minute and 5 to 6 lines आप तैयार करके रखो. It's more than enough. So and especially हम ये हमेशा कहते हैं कि जहाँ आप introduction leave करते हो अपना, वहाँ से ही आपका नेक्स्ट इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा. लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली. सो इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी प्रिसाइज, कंसाइज फॉर्म. और हमें सपोज यू आर अ करंट वर्किंग कैंडिडेट समवेयर, यू आर करंटली वर्किंग, सो मेक श्योर दैट यू आर मेंशनिंग करंटली आई एम वर्किंग हियर इफ यू वांट हिम टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट एरिया. If you had a relevant project, you did work on something relatable to oil and gas company in your bachelor's project. So I think you should always talk about that bachelor's project in your introduction only and give them a brief that my project title was this. And that's it. 5 to 6 lines, precise and concise is the main part of your introduction part. That is very relevant point because even I have seen Shruti like especially those candidates जिनके पास बताने को बहुत कुछ है, जिन्होंने बहुत सा इंटर्नशिप किया है, बहुत सा एक्सपीरियंस है. Somebody who is having lot of things to tell, he always starts vomiting out everything in the introduction. उससे क्या होता है कि इतना लंबा हो जाता है. और जो इंटरव्यूअर है लाइक अस इन यू नो देयर स्नैप इंटरव्यूज, वी लूज इंटरेस्ट. और जो आप बता रहे हैं कि एक ऐसी जगह फोकस करो जहां से तुम चाहते हो क्वेश्चन पूछे, वो कहीं मिस हो जाता है. सो इट शुड बी सर डेफिनेटली शिफ्ट हो ही जाता है, स्पेशली अगर कोई 9 to 10 लाइंस दे रहा है, हमें अचीवमेंट्स बताई जा रहा है, हॉबीज भी इंक्लूड कर देते हैं स्टूडेंट उसी में. और फिर हम ये होते हैं कि लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर कोई इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इंट्रोडक्शन से तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपके पास. वेरी ट्रू. एंड मोर ओवर उनका टाइम बहुत प्रीशियस है. अगर सपोज उनको 15 मिनट ही आपका इंटरव्यू लेना है, तो why not that they should ask more questions to you because there are a panel of 5-6 people. So everybody should get chance to ask you question rather than आप इतना ज्यादा टाइम ले रहे हैं आंसर करने में. वो आपको स्टॉप नहीं करेंगे लेकिन टाइम आपने उनका वेस्ट कर दिया. सर आई वुड लाइक टू ऐड कि जब ऐसा होता है कि वी आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम टू गिव आंसर और लाइक दैट, सो उसमें होता है कि आपकी चेकिंग जो होती है ना प्रॉपर्ली, वो भी नहीं हो पाती. आई थिंक उससे लगता है आपको कई बार वो चांस छूट जाता है आपसे. आई बिलीव दैट कि अगर वो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इंट्रोडक्शन में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा. वी आल्सो गॉट फ्रस्ट्रेटेड पैनलिस्ट लाइक कि ये तो कुछ आंसर दे ही रहा है इस तरीके से. श्रुति, वन वेरी कॉमन क्वेश्चन दिस कैंडिडेट्स हैव इज के मैम क्या हमें सीवी बनाना है या सीवी वो मांगेंगे, क्या है? तो व्हाट इज सीवी पार्ट ऑफ सर समटाइम्स द ऑर्गेनाइजेशन आस्क फॉर यू द एप्लीकेशन फॉर्म और सीवी इनिशियली पूछ लेते हैं उनसे. कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन आपसे सीवी डिटेल रेज्यूमे भी बाद में कहते हैं कि लेके ही आना है. और डेफिनेटली है ना, तो डिटेल और वहां जाके मंगवा कई उस वहां पे भी फिल करवा देते हैं. सो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है. मुझे लगता है कि हमेशा हमें रेडी होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें सीवी में क्या लिखना है, क्या सेक्शन ऐड करना है, कितनी रेलेवेंट करनी है, पर्सनल डिटेल्स ऐड करनी होती है कि नहीं करनी होती. और स्पेशली जब स्टूडेंट अपने एप्लीकेंट्स अपनी पिक्चर चिपका देते हैं प्रोफेशनल सीवी में, व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड, स्पेशली जब आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया ही था. सो आई थिंक वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए. और राइट मेंटरिंग भी उसके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है. ओके शिखा, हाउ मेनी हॉबीज, हाउ मेनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस typically you should tell? Okay, so first I would like to start with strength and weaknesses. It should be 3:2. 3 strength 2 weakness. अगर तो आप फ्रेशर हो, I'm just giving a general answer here. अगर आप फ्रेशर हो, so you can give your generic strength or weaknesses related to your personality traits. ठीक है, and make sure आपकी skills और आपकी personality traits अलग अलग होती हैं. उनमें थोड़ी सा डिफरेंस होता है. आपकी हैबिट्स भी बहुत अलग होती हैं. आप उनको मर्ज ना करें. एंड अगर आप मतलब बेसिकली आप किसी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए जा रहे हैं, तो यू शुड ऑलवेज अलाइन योर स्ट्रेंथ टू दैट.
ठीक है, आप मैनेजर की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, आप डिप्टी मैनेजर की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, या फिर और किसी भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, बेसिकली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या ट्रेनी लाइक दैट. सो आप यू शुड बी अलाइन योर स्ट्रेंथ टू दैट. एंड वीकनेस आपके मिनिमल कोई भी हो सकती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को लाइक हिंड्रेंस ना करे. दैट्स द थिंग. टॉकिंग अबाउट योर हॉबी, आप अगर एक हॉबी ऐसी बता दो कि जो बहुत डिफरेंशिएट है, बहुत अलग है, एंड इट इज इम्पैक्टफुल, कि पूछने का मन करे कि हाँ क्या है, आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहना, एंड यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट. नंबर 1, अगर आप 2 या 3, आई थिंक आपको हॉबी 2 बतानी चाहिए, आई गेस इट वुड बी डाइवर्सिफाई. ठीक है, एंड ये होगा कि हो सकता है जो आपकी ईजियर वन हो, एग्जामिनर गलती से मतलब वही उठा ले और आपसे क्वेश्चन पूछे, तो आप क्रॉस क्वेश्चनिंग में उसको बहुत इजीली जस्टिफाई कर सकते हो. सो दैट कैन बी द थिंग बेसिकली. Okay. Yeah. So friends, more or less we have discussed about HR, GD, etc. Now, as far as the professional background is concerned, YourPedia provides you learning document for everything. Drilling in mechanical engineering, what kind of questions can be asked? Why you want to become drilling engineer? You're a mechanical engineer, so why ONGC? That to drilling profile. Why production profile? As petroleum engineer, why you want to join ONGC, and what future do you see for yourself? Geologist, geophysicist, इसका हमारा 40-50 पेज का डॉक्यूमेंट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड सर्टेन डोमेन्स ऑफ लर्निंग आर अवेलेबल, और इसका डिटेल वीडियो भी हमने बनाया है, और आप इसको वेबसाइट से हमारा yourpedia.in, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. फ्रेंड्स, रीड दिस डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ मस्ट रीडेबल रीडिंग डॉक्यूमेंट फॉर यू, एंड नीडलेस टू से डॉक्यूमेंट्स आर जनरल, but you can always prepare with the mentors of YourPedia, because preparation of the interview is always customized. It is 1-to-1, बिकॉज जो आप आंसर करोगे उसके आगे क्वेश्चन जो आएगा मेंटर पूछेगा वो आपके आंसर के बेस पे पूछेगा, तो हर किसी का क्वेश्चन अलग होगा. इट इज कस्टमाइज्ड, इट इज 1-to-1, एंड आपको प्रैक्टिस करनी है. इट इज लाइक if you want to learn swimming, friends, you need to enter in the water. Similar to that, आप GD सुन के या इंटरव्यू की तैयारी आप वीडियो सुन के नहीं कर सकते, उसके लिए इंटरव्यू देना पड़ता है. और YourPedia आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जिसमें आप बहुत सी सेशन कर सकते हैं मेंटर्स के साथ, अलग अलग मेंटर्स के साथ जो एक्सपर्ट हैं, जिनका काम पूरा साल यही होता है, वो बहुत सी मेंटरिंग करते रहते हैं. तो दे आर एक्सपर्ट, वी आर एक्सपर्ट इन दैट डोमेन, एंड वी गेट द नॉलेज थ्रू पीपल लाइक यू ओनली, हु गेट सेलेक्टेड, हु शेयर विद अस देयर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, एंड देन वी ट्रांसफर इट फर्दर. So prepare with us, and we'll surely help you to score good in your interview. So all the very best, friends. Thank you.